किसान 13 फरवरी 2024 ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਛੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 82 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ। किसान आगुआं ने शुक्रवार ਨੂੰ चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ प्रहलाद जोशी ਨਾਲ MSP सने 11 ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। शाम 5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ MSP ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ शिवराज सिंह चौहान ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ प्रहलाद जोशी ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ किसान आगुआं नाल चंगे माहौल दे विच मीटिंग हुई। असीं किसान आगुआं दीआं सारीआं मंगां सुणीआं, उन्हां नूं बजट दे विच किसानां लई लए गए फैसलिਆਂ बारे दस्सिआ। 22 फरवरी ਨੂੰ चंडीगढ़ दे विच केंद्री मंत्री शिवराज चौहान ਦੀ अगवाई हेठ एक मीटिंग होवेगी। किसान आगू जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि यह मीटिंग सकारात्मक रही है। सरवण सिंह पंधेर ने कहा कि किसान संगठन केंद्र नाल गलबात राहीं मसला हल करवाउणा चाहुंदे ने, पर सरकारां दी अप्रोच कैजुअल नहीं होनी चाहिदी। लोकां नूं इह कह के गुमराह कीता जा रिहा है कि MSP लागू करन दे सालाना 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ रुपए दा खर्चा आवेगा। पंजाब के खेतीबाड़ी मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने कहा कि सूबा सरकार किसानां नाल मोढा जोड़ के खड़ी है। केंद्र नूं किसानां दीआं मंगां ते हमदर्दी दे नाल विचार करना चाहिदा है अते उन्हां नूं जल्दी तो जल्दी हल करना चाहिदा है। उधर सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल नूं गहरा सदमा लग्या। दस्सिए कि डल्लेवाल दी होनहार पोतरी राजनदीप कौर जो गुड़गांव विखे मैडिकल की पढ़ाई कर रही सी, पिछले कुछ दिनों तो उसकी सेहत ठीक नहीं सी। वह हस्पताल दे विच दाखिल सी ते बीते दिनी वह अकाल चलाना कर गई। पूरे परिवार सके संबंधियों लिए कदे ना पूरा होने वाला घाटा पै गया। डल्लेवाल यह दुख उदों होर भी वड्डा हो गया जदों प्रधान जी अपनियां जिम्मेवारियां नूं समझदे होए बच्ची दे अंतिम संस्कार उपर नहीं पहुंच सके। उधर किसान अंदोलन 2 ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ MSP ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਭਾਅ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਗੰਨੇ ਦੀ FRP ਅਤੇ SAP ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਲਦੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਜ਼ਾ मुक्ति दिती जावे। पिछले दिल्ली अंदोलन दीआं अधूरियां मंगां जिवें कि लखीमपुरी खीरी कतलकांड दे विच इंसाफ दिता जावे। अजय मिश्रा नूं मंत्री मंडल चों बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जावे। आशीष मिश्रा दी जमानत रद्द की जावे। सारे मुलजमां खिलाफ बनदी कार्रवाई की जावे। समझौते अनुसार जख्मियां नूं 10 ਲੱਖ रुपए का मुआवजा दिता जावे। बिजली खेतर दे निजीकरण लई बिजली सोध बिल ते दिल्ली किसान मोर्चे दौरान यह सहमति बनी सी कि खपतकारां नूं भरोसे चले बिना इस नूं लागू नहीं किया जावे। जो इस वेले आर्डीनेंस राही पिछले दरवाजे राही लागू किया जा रहा है, इस नूं रद्द किया जावे। खेती सैक्टरां नूं वादे मुताबिक प्रदूषण कानूनां तो बाहर रखिया जावे। भारत विश्व ਵਪਾਰ संगठन ਦੇ खेती समझौतिਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ खेती ਵਸਤਾਂ, ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮੀਟ ਆਦि ਦੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 5ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬੀਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਖੁਦ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਏਕੜ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ। ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿ ਐਕਟ 2013 ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ 200 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧਾ ਕੇ 700 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬੀਜ ਅਤੇ ਆਦ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਪਾਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ
लाइसेंस रद्द करने संबंधी मंगा लागू करना। कल जो केंद्र से वार्ता हुई, केंद्र के मंत्री प्रहलाद जोशी, खेतीबाड़ी के सेक्रेटरी, फूड सप्लाई मंत्रालय के सेक्रेटरी, जिन्होंने अपना पक्ष रखा कि हमने 2014 से लेके 2024-25 तक जो एमएसपी में बड़ी बढ़ोतरी की है, उनका कहना था 56%, 56% एमएसपी में बढ़ोतरी हुई है। और उन्होंने ऐसा कहा, पीएम आशा और अन्य पॉलिसी हमने किसानों को उचित मूल्य फसल का देने के लिए बनाया है। जब केंद्र ने अपनी बात रख ली तो फिर किसान लीडर्स ने अपनी बात उनके समक्ष रखी कि अगर हम देखें, जहां आप बता रहे हैं कि 56% एमएसपी के ऊपर बढ़ोतरी हुई है, वहां पर अगर जो हमारे इनपुट्स हैं, जो हमारी लागतें हैं, जो महंगाई है, वो 59% के रूप में बढ़ गई है इन्हीं 2014 से लेकर 24 तक। तो इस मूल्य का हमें कोई फायदा नहीं है। हमने छत्तीसगढ़ का आंकड़ा, मध्य प्रदेश का आंकड़ा उनके समक्ष रखा कि मध्य प्रदेश की सरकार ने किसानों के साथ मिलकर 6000 लागत मूल्य सोयाबीन का तय किया, लेकिन केंद्र की एमएसपी 4800 कुछ रुपए थी और फसल उससे 1000 रुपया नीचे पर बिकी। मध्य प्रदेश सरकार ने चिट्ठी लिखी केंद्र को कि आप 40% खरीदिए, लेकिन कल की मीटिंग उन्होंने कहा हमने 25% खरीदा। तो जो किसानों को अगर जो केंद्र दावा कर रहा भी मूल्य मिल रहा है, तो फिर ये आंदोलन की क्या जरूरत थी? किसान कर्ज के कारण खुदकुशियां को कर रहे हैं। और हमने कहा कि हमारी, आप बोल रहे हैं कि एमएसपी से ऊपर बहुत सी फसलें बिक रही हैं, उनका कहना था। हमने कहा तब फिर हमारा तर्क और वाजिब हो जाता है कि आप एमएसपी लीगल गारंटी कानून बनाइए। और इसके ऊपर केंद्र सरकार निरुत्तर हो गई। उन्होंने कहा अभी आज कृषि मंत्री नहीं है, तो अगली वार्ता हम आपसे 22 को करेंगे। और हमने कहा ये वार्ता का स्थान नई दिल्ली होना चाहिए। तो आगे देखते क्या निकलता। अगर केंद्र वार्ता जारी रखना चाहता है तो हमें कोई भी आपत्ति नहीं, हम चाहते बातचीत से मसलों का हल हो। ये जो एमएसपी लीगल गारंटी कानून है, यह विल पावर का सवाल है। अकेले एमएसपी लीगल गारंटी कानून के ऊपर ही चर्चा हो सकी, अन्य मांगों के ऊपर चर्चा नहीं हुई। हमने केंद्र से आग्रह किया है कि आपने जो हमें देश की राजधानी में जाने नहीं दिया, जो ये रोड्स ब्लॉक हैं, इससे पंजाब हरियाणा की आर्थिकता का नुकसान हो रहा है, ट्रांसपोर्टर का नुकसान हो रहा है, या हम लोगों को मुश्किलें आ जानी हैं। रोड पर बैठना हमारा अनक का सवाल नहीं है, मजबूरी जरूर है। हम अपने जो हक है वो लेना चाहते हैं डेमोक्रेसी में। तो ये कल की वार्ता का निष्कर्ष हम आपको बता रहे हैं। और जो आज बाहर से डिबोट होकर फिर जो देश में युवा आ रहे हैं, उन युवाओं का सभी स्टेट की राज्य सरकारें, केंद्र सरकार उनके पैसों की भरपाई और उनको रोजगार दें, ऐसा हम मानते हैं। और ये भारत में बेरोजगारी का बोलता जागता सबूत है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ट्रंप जी से इस मुद्दे में कोई बात नहीं कही, इसका हमें खेद रहेगा।